Class 3 Science Chapter 6 Birds. Hello students, welcome to your science class. As you all know students, we have completed the first chapter of UT1 which is chapter 4. You all know chapter 1 and chapter 5 is just an activity chapter. We have to read that chapter and understand the meaning only. Okay, and the second chapter of UT2 is chapter 6. What is the name of that chapter? Birds. Today we will start this chapter. First of all, you will write date on the top and also mention reading. Okay, let's start the chapter. Birds means pakshi. Birds are also animals. You all know ना, birds are also animals. पक्षी भी जानवर ही होते हैं. Do you know what make a bird different from other animals? क्या आप जानते हैं क्या चीज़ बर्ड्स को अदर एनिमल से डिफरेंट बनाती है? इज इट द विंग्स? क्या वो पंख होते हैं? नो. इंसेक्ट्स एंड सम मैमल्स लाइक द बैट ऑल्सो हैव विंग्स. यानी कुछ इंसेक्ट्स और कुछ मैमल्स के पास भी विंग्स होते हैं लाइक दैट. तो विंग्स तो उनको अलग नहीं बनाते. देन व्हाट इज इट? क्या है फिर? किस चीज़ की वजह से बर्ड्स अलग होते हैं एनिमल्स से? वाई? Yes, they are feathers. Birds are the only animals that have feathers. The body of a bird is covered with feathers. Feathers do many jobs for them. They keep the bird warm and help them fly. They have a beak to hold and eat food. Birds do not have teeth. Dear students, you can see the picture of a bird. This is a pigeon. Birds are the only animals that have feathers. यानी birds अकेले ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर feathers होते हैं. ठीक है, fur. The body of a bird is covered with feathers. Birds की पूरी body किससे cover होती है? Feathers से. Feathers do many job for them. Feathers उनके लिए बहुत से काम करते हैं. They keep the bird warm and help them fly. वो bird को warm रखते हैं और उनको उड़ने में भी help करते हैं. They have a beak to hold and eat food. यानी उनके पास एक बीक होती है जिसकी हेल्प से वो फूड को ईट कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ्स. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. बर्ड्स chew their food inside a part of the stomach called the gizzard. यानी बर्ड्स अपना फूड कैसे चू करते हैं? उनके स्टमक के अंदर एक उनका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड. उसकी हेल्प से बर्ड्स अपना फूड चू करते हैं. नाउ इन द गिवन पिक्चर वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. फर्स्ट इज बर्ड्स हैव बीक, nostrils, eye, neck, back, wing, wing feathers and claws. Okay, now move to the next topic, eating habits and beaks. Different birds have different types of beaks. The shape and size of the beak is suited to the type of food it eats. Okay? A bird also uses its beak for building its nest, defense, cleaning itself and for feeding its young ones. Dear students, अलग अलग पक्षियों के पास अलग अलग टाइप की बीक होती है. बीक मीन्स चोंच. ओके, द शेप एंड साइज ऑफ द बीक इज सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. यानी उनकी जो बीक की शेप और साइज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? किस टाइप का फूड वो ईट करते हैं उस पर डिपेंड करती है. अ बर्ड ऑल्सो यूजेस इट्स बीक फॉर. बर्ड्स अपनी बीक का यूज़ और किस लिए करते हैं? बिल्डिंग इट्स नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए, डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए, क्लीनिंग इटसेल्फ, अपनी क्लीनिंग करने के लिए, एंड वो फीडिंग इट्स यंग वंस, और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. ओके, नाउ यू ऑल नो द यूजेस ऑफ बीक. नाउ टाइप्स ऑफ बीक, यानी बीक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बीक वी विल learn about the different types of birds. First is curved beak. Parrots have a curved beak. The beak helps it to crack nuts, seeds and eat other things. You can see in the picture, parrot के पास ऐसी beak होती है, curved beak, घुमावदार beak. Okay.
पैरट अपनी बीक का यूज़ किस लिए करता है? नट को क्रैक करने में, सीड्स को ईट करने में और बाकी अदर चीज़ों को भी ईट करने में वो अपनी बीक से ही करता है ये काम. ओके, द बीक हेल्प इट टू क्रैक नट्स, सीड्स एंड ईट अदर थिंग्स. नाउ सेकेंड इज शार्प, हुक्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक. ठीक है, तीखी, हुक्ड मतलब हुक की जैसे घूमी हुई. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग बीक, एकदम स्ट्रॉन्ग. Vultures, kites and eagles have this type of beak. This helps them to tear flesh of their prey. यानी जो वल्चर्स होते हैं, काइट्स होती हैं, ईगल्स होते हैं, उनके पास इस टाइप की बीक होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ओके, और ये जो उनकी बीक होती है उनको हेल्प करती है उनकी प्रे का फ्लैश को टीयर करने में. जो कि स्टूडेंट्स, नाउ फॉर द अदर टाइप्स ऑफ बीक यू हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, पेज नंबर 32. शॉर्ट, hard and horny beak. Birds like the pigeon, sparrow and peacock have this type of beak to crush grains and seeds. You can see in the picture also. जो sparrow, pigeon और sparrow and peacock, ये जो 3 टाइप्स के बर्ड हैं इनके पास कैसी बीक होती है? शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक. और इस बीक का यूज़ वो किस लिए करते हैं? ग्रेन्स को क्रश करने में, क्योंकि वो खाते हैं, छोटे छोटे दाने खाते हैं, सीड्स को खाते हैं और उनको क्रश करने के लिए उनकी छोटी सी हार्ड सी हॉनी बीक यूज़ आती है उनको. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. वुडपेकर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड बीक. इट एक्ट्स लाइक अ चिजल. दिस हेल्प्स देम टू मेक होल्स इनटू द ट्रंक ऑफ ट्रीज फॉर नेस्ट एज वेल एज टेक आउट इंसेक्ट्स. अब देखिए, जो वुड पेकर होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज अ वुड पेकर. इनकी जो बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एकदम शार्प होती है और एकदम तीखी होती है, पॉइंटेड, निशाने वाली एकदम. ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ चिजल. ये चिजल क्या होती है बेटा? आरी, एकदम आरी के जैसा काम करती है, इससे कुछ भी काट सकते हैं, बहुत शार्प होती है. दिस हेल्प्स देम टू मेक होल्स इन टू ट्रंक्स ऑफ ट्रीज फॉर नेस्ट एज वेल एज टेक आउट इंसेक्ट्स. और इस बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं? कंटिन्यू ट्री पर अटैक करते हैं, टक 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 टक, सो दैट दे कैन मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज. यानी पेड़ की टहनी में, पेड़ की तने में वो छेद बना देते हैं और जिससे वो वहाँ पर अपना नेस्ट बना लेते हैं, या फिर वहाँ से अगर उनको कोई इंसेक्ट्स को बाहर निकल कर खाना है तो वो भी इसलिए ही वो ट्रीज में होल करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ बीक. नाउ short and broad beak. Insect eating bird like the swallow has a short and broad beak which is sticky from the inside. It flies in the air with its beak open. Tiny insects get stuck inside. देखिए, you can see in the picture, this is a swallow and swallow की जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है और ब्रॉड होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है. ठीक है, अब ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? जब ये फ्लाई करते हैं तो ये अपनी जो बीक होती है ओपन करके रखते हैं. ठीक है, ओपन करे रखते हैं तो इससे क्या होता है? उनकी जो बीक होती है अंदर की, वो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है. जब वो माउथ ओपन करके फ्लाई करते हैं तो छोटे छोटे इंसेक्ट उनके बीक में स्टक हो जाते हैं, फंसते चले जाते हैं. देन दे ईट दैट इंसेक्ट्स. ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. Now come to the next point. Long and sharp pointed beak, यानी लंबी, तीखी और बहुत एकदम पॉइंटेड, निशाने वाली बीक, एकदम तीखी, एकदम सीधी. You can see in this picture like a beak of a crane. Okay, herons and crane have this type of beak for catching fish. यानी herons and crane जो होते हैं उनके पास इस टाइप की बीक होती है जिससे कि वो वाटर के अंदर से फिश को कैच कर सकें. ओके, now next point is broad, blunt and flat beak. Ducks and swans have blunt and flat beaks that have fine filters comb-like along the upper and lower edges of the beak. This helps to strain insects and small water plants from water. Okay, देखिए बेटा, जो डक की बीक होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, एकदम ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और ब्लंट मतलब आगे से बिल्कुल भी शार्प नहीं होती उनकी बीक.
ठीक है। डक्स एंड स्वॉन्स की जो बीक होती है वो फ्लैट होती है और उसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, मतलब जैसे आप कॉम में देखते हैं ना, आप कॉम के अंदर लाइंस होती हैं, दैट टाइप से उनकी बीक में भी होती हैं। ओके, और अपर एज में भी होती हैं, लोअर एज में भी होती हैं बीक की, जिससे क्या होता है जब वो वाटर के अंदर से बहुत सारे पौधे और इंसेक्ट्स एक साथ वाटर में अपना बीक को डालते हैं, तो क्या होता है कि जो गंदगी होती है वो तो सब उनकी बीक के फिल्टर्स में से नीचे निकल जाती है एंड इंसेक्ट्स उनके माउथ में रह जाते हैं, सो दैट दे कैन ईट दैट इंसेक्ट्स। ओके, लाइक दिस द बीक ऑफ दीज बर्ड्स हेल्प देम टू ईट। ओके, now students, we will read about this long and cylinder beak. Hummingbirds use their long cylinder beak to look into flowers for the nectar they eat. Okay, जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग और सिलेंडर गोल गोल बीक होती है उनकी एकदम, उसका यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि वो फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर्स को निकाल सके, खा सके, ईट कर सके, ड्रिंक कर सके। ओके, and students, the last point, do you know the smallest bird in the world is the hummingbird. It weight less than 1 oz or 1 gram. यानी वर्ल्ड की सबसे छोटी बर्ड होती है हमिंग बर्ड और उसका वेट 1 ओज से भी कम, 1 ग्राम से भी कम होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स in this video all these topics will clear to you. Watch this video twice and try to understand the concept, and if you have any doubt you can ask me. Till then, try to read the chapter. We will meet in our next class. Thank you and have a nice day.